Good morning, children. Today we will do Chapter 20, Universal Bodies, Part 1. Knowledge Mapping. In this chapter, we will cover the topics Universal Bodies, Sun, the Solar System, the Moon, the Earth, the Stars. So first topic is Universal Bodies. When we look up in the sky in the day, what do we see? अगर हम डे टाइम पे स्काई को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? We see the sun shining bright in the sky. डे टाइम पे हमें स्काई में सन जो है वो शाइन करता हुआ चमकता हुआ दिखाई देता है. डे टाइम पे सन हमें ब्राइटली शाइन करता दिखाई देता है. At night we see numerous stars and moon beautifully shining in the sky. Numerous means a large number. लेकिन जब हम रात को स्काई को देखते हैं तो स्काई में हमें सन दिखाई नहीं देता. रात को हमें काउंटलेस स्टार्स दिखाई देते हैं और मून दिखाई देता है जो कि स्काई में बहुत ही सुंदर तरीके से शाइन करता हुआ दिखाई देता है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. Moon and stars, they shine at night and the sun shines during the daytime. Apart from these, there are various planets that move around the sun. Apart from these, sun, moon और stars के अलावा और बहुत से planets हैं जो कि sun के आसपास move करते हैं. The sun, moon, earth and the planet are all universal bodies. Sun, moon, earth और planets, 8 planets हैं जो कि सन के आसपास घूमते हैं. ये सब चीजें यूनिवर्सल बॉडीज कहलाती हैं. द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम क्या है? There are 8 planets that move around the sun in a fixed path called orbits. These planets do not have light and heat of their own. They get their light and heat from the sun around which they move. सोलर सिस्टम जो है वो सन और 8 प्लैनेट से बना हुआ है. The sun is at the center of the solar system and the 8 planets they revolve around the sun. 8 planets they revolve around the sun in a fixed path and that path is called orbit. You can see in the picture the path of each planet is shown in the picture through white line. ये जो planets हैं you can see in the picture Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इनकी जो है अपनी कोई लाइट नहीं होती और इनके पास 8 की 8 प्लैनेट्स हैं, इनकी अपनी कोई हीट नहीं होती. आई रिपीट, सोलर सिस्टम बना हुआ है सन एंड द 8 प्लैनेट से. 8 प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं और उनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती. वो हीट और लाइट सन से लेते हैं. All these planets they take the heat and light from the sun. These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 8 planets हैं. Mercury, Venus आप देख सकते हो पिक्चर में. Earth, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturn, 7 Uranus and 8 Neptune. The third planet, that is Earth, is our home. It is the only planet which supports life. जो third planet है, वो है Earth, और हम Earth पे रहते हैं. And Earth is the only planet where life is possible. Jupiter is the largest and Mercury is the smallest planet. Jupiter सबसे बड़ा planet है और Mercury सबसे छोटा planet है. Next is the Earth. The Earth is the only planet in the solar system that has life. It is the home to plants, animals, and human beings. The presence of air, water, and ideal temperature makes life possible on the Earth. It is also called the blue planet as about 3/4 of its surface is covered with water. The Earth is spherical in shape and it's slightly flattened at the poles. The Earth is surrounded by a thin layer of air called atmosphere.
हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है, एक अर्थ ही है जिसपे लाइफ है और इस अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हम इंसान रहते हैं। अर्थ के ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अर्थ के ऊपर एयर है, वाटर है और जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल सुटेबल टेम्परेचर है फॉर मेकिंग द लाइफ पॉसिबल। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे एयर है, वाटर है, जिससे कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अदर प्लैनेट्स के ऊपर टेम्परेचर इज नॉट आइडियल एंड द वाटर इज नॉट देयर और द एयर इज नॉट देयर, so life is not possible on the other planets. These conditions they make the life possible on the earth. और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर है। अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स क्या है? वाटर और 1 पार्ट क्या है? लैंड। सो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ जो है वो सफेरिकल शेप में है, यू कैन सी इन द पिक्चर, लेकिन जो पोल्स हैं, पोल्स पे ये थोड़ी सी फ्लैट है। अर्थ के आसपास एक थिन लेयर ऑफ एयर है। हमारी अर्थ है इज सराउंडेड बाय अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो लेयर ऑफ एयर है इट सर्व्स लाइक ए ब्लैंकेट और इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ को ना ज्यादा ठंडा होने देता है ना ही ज्यादा गर्म होने देता है। Movement of the earth, rotation and revolution. Even though we cannot feel it, the earth is moving all the time. There are two types of movements, rotation and revolution. अर्थ जो है वो दो तरह की मूवमेंट शो करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। लेकिन चाहे हमारी अर्थ लगातार ऑल द टाइम ये घूम रही है अपनी एक्सिस पर भी और सन के आसपास भी, यू कैन सी इन द पिक्चर द अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। और मून आपको अर्थ के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। The earth moves on its own axis. At the same time, it revolves around the sun also. So this way, the earth is showing two types of movement, rotation and revolution. We will study rotation and revolution one by one. Factopedia. Our planet Earth is believed to be about 4.54 billion years old. ये माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो 4.54 बिलियन पुरानी है, इतने साल पहले बनी है। नंबर 1, रोटेशन। रोटेशन क्या है? द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप। अर्थ अपने एक्सिस पे एक टॉप की तरह घूमती है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, आप पिक्चर में देख सकते हो, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ में से निकलती है। देयर इज नो सच लाइन, वी जस्ट इमेजिन अ लाइन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन और इस मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स एंड और 1 डे फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, जो कि 1 डे के बराबर हैं। As the earth rotates, one half of it faces the sun. जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो इसको रोटेशन बोलते हैं, और जब अर्थ रोटेट करती है तो इसका जो हाफ पार्ट है वो सन को फेस करता है और हाफ पार्ट सन को फेस नहीं करता है। द सनलाइट फॉल ऑन इट्स हाफ, और जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। इट इज डे टाइम इन दिस हाफ, और उस हाफ में डे टाइम होता है। The part of the sun which is on the other side is not facing the sun, that part is dark and therefore it has night time. अब जो पार्ट अर्थ का सन से पीछे है, जो सन के सामने नहीं है, सन को फेस नहीं कर रहा है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है और वहां पे डार्क होता है, अंधेरा होता है, और इसको हम नाइट टाइम बोलते हैं। As the earth rotates, the dark part when faces the sun, it has daytime. लेकिन घूमते घूमते जब वही डार्क पार्ट सन के सामने आ जाता है तो वहां पे डे टाइम हो जाता है, क्योंकि उस पार्ट को अब सनलाइट मिलनी शुरू हो गई।
or the part which has having day earlier experiences darkness and hence it is night time in that part. और वो part जहाँ पे पहले डे था, अब वो घूमते घूमते सन के पीछे चला गया, वहां पे लाइट नहीं जा रही है, तो वहां पे डार्कनेस होगी और वहां पे अब नाइट हो जाएगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, द पार्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन हैज डे एंड द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन एंड नॉट गेटिंग द सनलाइट हैज नाइट। Therefore, the rotation of the earth causes day and night. और इस तरीके से डे और नाइट बनते हैं। Revolution. While rotating on its own axis, the earth also moves around the sun in a fixed path called orbit. The movement of the earth around the sun in a fixed path is called revolution. This movement, one revolution, takes 365 days and 6 hours, that is 1 year. The revolution of the earth around the sun causes change in seasons. अब सेकेंड मूवमेंट अर्थ की है रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सन के आसपास भी घूमती है इन ए फिक्स पाथ, और उस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और इस मूवमेंट जो है अर्थ की, एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, जो कि 1 ईयर के बराबर है। और रेवोल्यूशन से अर्थ जब रेवोल्यूट करती है सन के आसपास तो अलग अलग सीजन्स बनते हैं। In this picture, you can see also revolution of the earth causes various seasons. So this was all for today. I hope you must have understood the chapter. Thank you very much.